जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर व उनके डिपार्टमेंट द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने पिछले 2 वर्षों की बात करें तो 2 वर्षों में क्या क्या उपलब्धि हुई, और नैक द्वारा कुछ दिन पहले ही सर्वे किया गया जम्मू यूनिवर्सिटीज़ में, और उस सर्वे के बारे में जो पूरा जो है वो मीडिया को ब्रीफ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। मैं मीडिया को एड्रेस करूं इसके पहले डायरेक्टर टीका, जो डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस की डायरेक्टर हैं डॉक्टर गिनी डोगरा जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपको इस पूरे प्रोसीजर के बारे में ब्रीफ करें और अचीवमेंट्स का डिटेल्स आपसे शेयर करें। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Like Mansi said, it's indeed historic and momentous occasion today that our results of NAC accreditation cycle 4 have been declared, and we have, under the visionary leadership of the Vice Chancellor Professor Umesh Rai ji, we have been able to achieve the highest grade of A++ with a CGPA of 3.72. This is a marked improvement over the last year accreditation we got in cycle 3, which happened in 2016. Form with details, a comprehensive form जहाँ हमको डेटा सबमिट करना था NAC पोर्टल पे, एंड 70% डेटा हमारा क्वांटिटेटिव डेटा था जो NAC ने अपने कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑलरेडी असेस कर लिया था अर्ली इन द ईयर. This was followed by a student satisfaction survey, जहाँ पे NAC ने डायरेक्टली हमारे स्टूडेंट्स को अप्रोच किया थ्रू ईमेल एंड उनसे फीडबैक लिया यूनिवर्सिटी के बारे में. We achieved a very high grade on the student satisfaction survey as well. And then last week, NAC peer team comprising of eminent academicians, जो vice chancellors of universities और leading researchers and academicians आए थे. They were a group of 7 people, a team of 7 people, जिन्होंने हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में इन ड्यूरेशन ऑफ 3 days दे वेंट टू आवर टीचिंग डिपार्टमेंट्स, हमारी सेंट्रल फैसिलिटीज़, हमारे रिसर्च, हमारा हॉस्टल्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, इनफैक्ट हमारे ऑफसाइट कैंपसेस भी हो गए, और अपना सारा कंसोलिडेटेड ग्रेड, क्वालिटेटिव ग्रेड उन्होंने हमको NAC को हमारा सबमिट किया. Based on the quantitative data which had a component of 70% and qualitative data which had a component of 30%, हमको ये कल जो लास्ट नाइट हमारा ग्रेड आया है 3.72. एंड हमारे देवर अबाउट 7 पैरामीटर्स जो हमको NAC ने हमारा पूरा जो फ्रेमवर्क था असेस किया. पहला था टीचिंग लर्निंग, सेकेंड था पहला था करिकुलर एस्पेक्ट्स, सेकेंड वाज टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, third was research, innovation and extension, fourth was student support and progression, fifth था governance and management, leadership, governance and management, then was institutional values and best practices. और जो हमने कल रिपोर्ट देखी है अपनी जो पोर्टल पे आई है, हमको ईमेल से भी आई है, we have scored a full 4 on 4 on parameters like governance, leadership and management, on infrastructure and learning resources, and a 3.9 something on our institutional values and best practices. बाकी एरियाज़ में भी we are above 3.5. पूरे कंट्री में there are only 8 universities which have got A++, and university stands on the 4th rank based on the CGPA. Andhra University, Bangalore University and GNDU are the only universities जो हमारे से ahead है in cycle 4 accreditation. So I think under the leadership of our Vice Chancellor, जहाँ हमने पिछले 2 साल से इतने नए quality initiatives लिए towards teaching fraternity of the University of Jammu, but for the entire region. Outset, I express my gratitude to Honorable Chancellor Shri Manoj Sinha ji, within 50 in NRF ranking. Apart from that, this is the another major achievement, and that substantiates the NRF ranking position. Even more than that, Jammu Vishwavidyalaya
जम्मू कश्मीर का पहला विश्वविद्यालय हुआ है जो नैक के द्वारा A++ एक्रेडिटेड किया गया है. So that Jammu University has created the history in the J&K to be the first university accredited by NAC as A++. And as Dr. Gini Dogara said, we have entered into the fourth cycle. So our assessment was for the fourth cycle of that NAC assessment. And in that fourth cycle, total 8 universities have been accredited A++ in India In the last 3 years. in last 3 years. And we are at the fourth. If you see that the CGPA score 3.72, so keeping that in mind, we are at the fourth position. So it's a big achievement, and this achievement would not have been possible without the support of the government. And I would like to share with you that when I requested Honorable Chief Minister कि नैक की मेरी टीम आ रही है और क्या संभव है कि एक डिनर आपके द्वारा आयोजित हो सकता है, उन्हें कहा बिल्कुल. और न केवल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने रेजिडेंस पर वो डिनर रखा जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद रही. साथ में जब मैं ऑनरेबल अपने चांसलर साहब से मिला तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे. तो 2 डिनर, एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के द्वारा दिया जाना और दूसरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाना. उस डिनर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रहना और एजुकेशन मिनिस्टर का रहना यह बतलाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो चांसलर साहब हों और चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हों, या है कि जम्मू विश्वविद्यालय A++ आया. साथ में इसकी तैयारी 3 साल से जब मैं ज्वाइन किया था तब से चल रही है. और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे जो जम्मू विश्वविद्यालय में ओनरशिप दिखाई पड़ी है वह ओनरशिप मुझे अन्य किसी शिक्षण संस्था में दिखाई नहीं पड़ती है. और इस बात को जो टीम नैक आई थी, लोग हैं डीन एकेडमिक अफेयर्स, डीन रिसर्च स्टडीज, डीन प्लानिंग, DSW, या हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके भी मेंबरान यहाँ बैठे हुए हैं. लंबा हो जाएगा अगर हम नाम लेंगे उनका. तो सभी लोगों ने मिलकर के काम किया. और साथ में हर एक अध्यापक, हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक ऑफिसर, हर एक नॉन टीचिंग, हर एक नॉन गस्टेड, सभी के सहयोग से आज वो दिन आया है. और बच्चों ने अभूतपूर्व सहयोग किया है, लड़कों ने, छात्र छात्राओं ने अभूतपूर्व सहयोग किया है. चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के द्वारा हो, चाहे हॉस्टल में उनकी पेंटिंग के द्वारा हो, प्लांट्स लगाने के द्वारा हो. तो मैं आप मीडिया के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि 3 साल के मेरे टेन्योर में आपने जो मदद की परसेप्शन जम्मू विश्वविद्यालय का क्रिएट करने में, मैं पूरे जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से आपका आभारी हूँ. और मैं अपनी प्रसन्नता